जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक सब नाजरीन का हमारे चैनल यूरोप इन्फो टीवी में खुश आमदीद। एक मरतबा फिर आपका जी आपके साथ आपका भाई ले गया एक और प्यारी इंटरेस्टिंग और फंटेस्टिक किस्म की वीडियो। लास्ट में हम पहुंच गए थे जनाब, ईरान का बॉर्डर हमने क्रॉस कर लिया था और हमें खजूरों वाले बाग में पहुंचाया गया। खजूरों वाले बाग में जो है वो हमने क्या सीन किया देखते हैं अभी। ये वीडियो मैंने तब बनाई थी, तो चलिए वीडियो एंजॉय करते हैं और बेबसी अपनी बयान करता हूँ। ये वीडियो वायरल भी काफी हुई थी, आप लोगों ने देखी भी थी, दोबारा फिर देखते हैं जी। लो भी मेरे वीरो भरावो, ए बेली सारे बैठे जी डिंकी लाने वाले। इन्हां कोल ना ही पानी जे पीण नूं भरावा, ना ही खाण नूं कुछ है जे। ते ए वेखो ए यतीमा गण इत्थे पए ने 5 स्टार होटल विच, ते हर पासे वेखो जनाब ए मेरे भाई लम्मे पए ने। ते इन्हां कोल पुछ लो कि डिंकी लाण दा किन्ना स्वाद आउंदा है। इत्थे मेरे भरावो पानी जिहड़ा जे ओ यकीन करो मुकदा ही नहीं जे। ते आ जेह्ड़े पहाड़ ने ना, पहाड़ इन्हां दे विच लगे ने एसी। ते पानी नेड़े करो, ए पानी ते एडा जबरदस्त पानी है। हत्थ पे सड़दा ते केड़ा रंग है इस पानी दा, गंदा पानी है। देखो जिवें खोते पींदे ने ना ओह वाला हाल। ए सेठ बदर है तुहानू तुहाडे सामने पानी पी के वहाया दा पी। नहीं भाई, मैं ये पानी नहीं पी सकता। क्यों, तुम्हारा गांड पटा है? गांड पटा हो जाएगा, पटा हो। ते जनाब मेरी अज पंजवां दिन हो गया सानू, ते असी ना इत्थे इंजॉय कर रहे हैं ईरान विच। ईरान दे पहाड़ ने गुंड पहाड़, गर्मी इन्हां दी। ए वेख लो, ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਖਾਣ ਹਿਲੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਟੇ ਚਟਣੇ ਭਾਈ ਔਖੇ ਪੈਂਦੇ ਪਏ ਜੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆਨਾ ਵਾ ਕਿ ਡਿੰਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਓ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਡਿੰਗੀ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਆਪਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਲਾ ਹੀ ਲਈ ਆ, ਬਾਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਭਾਈ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਡਿੰਗੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ? ਡੇਂਗੀ ਸੀ ਭਾਜੀ ਬੁੰਡ ਪਾਟੀ ਪਈ ਏ। ਡੇਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਂਦੇ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਡੇਂਗੀ ਨਾ ਲਾਣ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਗਰਮੀ ਦੀ। ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ 'ਚ ਆਪਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਲੱਭਦਾ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਤੋਨੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਰਵੇ ਨਾ ਰਵੇ, ਗੱਲ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਚਾਚੇ ਰੀ ਲੰਮੇ ਪਏ ਨੇ ਭਾਈ ਯਾਰੀ ਕਿ ਛੱਡ ਗੱਲ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਜਨਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਭਾਈ ਯਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਗੋਰੀਆਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜੈ ਖਿਆਉਣਾ ਉੱਧਰ। ਇੱਥੇ ਲੀਰਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਗਏ ਨੇ ਭਰਾਵੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਨਾ ਪਿਆ, ਡਿੰਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਆ ਜੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਆ ਜੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਆ ਜੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਬੰਦੂਕ, ਤੇ ਸਵਾਦ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਹਾਂ ਸੇਠ ਛਾਨਿਆ ਦੱਸ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿੰਗੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਲੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਜਰਾ। ਨਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾਵੋ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਤੇ ਬੈਠੇ ਐਵੇਂ ਜੋਸ਼ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਯੂਰਪ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਂਦੇ ਜੀ 10-15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਟੁਰਨਾ ਹੈ ਕੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏਸੀ ਚੱਲਣਾ ਜਨਾਬ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਭਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਹੋਣਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਡੈਵਲ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਭਾਈਆ ਮੈਂ ਨਾਲ 4-5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਿਆਰ, ਆਖਿਆ ਜੀ ਯੂਰਪ ਚਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦਾ ਰਾਹ ਫੱਦਿਆ ਕੁਵੇਟੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਕਸਮ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਦ ਹੀ ਬੜਾ। ਕੁਵੇਟੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭਾਈਆ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਡਿੰਕੀ ਲਾਣ ਆਏ ਸੀ ਘਰੋਂ, ਡਿੰਕੀ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਕੁਵੇਟੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਯਕਮਾਚੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਯਕਮਾਚੇ ਚਾਹੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਮਾਰਨਾ ਵਾ। ਯਕਮਾਚੇ ਚਾਹੇ ਭਾਈ ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਠਾਣਾ ਲੱਦਿਆ ਡਾਲੇ ਤੇ, ਪੂਰੇ 13 ਘੰਟੇ ਡਾਲੇ ਚੱਲੇ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਰੋਟੀ ਨਾ ਥੀੜੀ ਨਾ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਮਕਾਨ। ਮੁਝਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਇੰਨਾ ਘੱਟਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਘੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਵੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਲੋ ਹਲੇ ਵੀ ਹੋਂਠ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਕਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੇ
ਤੇ ਭਾਈਓ 17 ਘੰਟੇ ਕੱਲ ਟੁਰੇ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਈਰਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ 17 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ देयर आर मैनी ups and down in the way because we are very feeling ਥਕਾਵਟ ਜੋ ਕੋਟੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਘੰਟੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਦੇ ਉੱਠੇ ਜੇ ਯਾਰ ਭਰਾਵਾ ਟੁਰ ਕੇ ਭਾਈਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਜੇ ਇਹ ਖਜੂਰਾਂ ਵਾਲੇ ਯਾਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਵੇਖੋ ਯਤੀਮਾ ਕਨਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ ਪਾਣੀ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਸੱਟਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਵੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਨਾਲ ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੀ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਭਾਈਓ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰੇ ਸੀ 35000 ਰੁਪਇਆ ਫੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚੀ ਪੁੱਛੋ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਲੀਰੇ ਕਰਾਏ ਨੇ ਉਹ ਸੌਰੀ ਤੁਮਣ और जेड़ा बंदा आंदा दिया भाई आप हम 50,000 का जो है ना वो एक पानी का बोतल देगा तो उन्होंने 50,000 का बोतल दिया पानी का पी गया और जितना पैसा था सारा चला गया जो डंकर डंकी लगवाने के लिए ले जाता था वो बोलता पैसे दो भाई पैसा वरना इधर सेह में रहेगा तुझको नहीं लेके जाएगा ओ भाईया ਉਹ ਕੁੱਟਿਆ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉਹ ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਾਫਾਜ਼ਤ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆ ਕਈ ਬੰਦੇ ਫ੍ਰੀ ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੀ ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਟਰੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਡੰਕੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਲਾਈਓ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਓ ਯਾਰ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨੀ है गो टू द रियलिटीज ऑफ हार्ड वर्ल्ड व्यू हिज ऑन एक्सपीरियंस इसलिए आप सब भाइयों से गुजारिश है कि आप डंकी जरूर लगाएं ये सारे भाई देख रहे हैं ना आप ये मेरे साथ डंकर और डंगर नहीं मतलब कि डिंकी लगाने वाले हैं तो हम तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मजा आ रहा है तो आपको अगर कोई बंदा कहे ना कि डिंकी बहुत मुश्किल है उसको बोलो मुश्किल नहीं है थोड़ा कोशिश करना पड़ता है क्योंकि जब 50,000 फीट बुलंदी पे ऊपर जाना पड़ता है ना पैदल फिर नीचे आना पड़ता है ओ यार कसम से ये देखो बंदे रात को चलते रहे ना तो इनके हाथ देखें ये देखो जख्म इनके इधर इनके गोडों पे इनके पता नहीं किधर किधर जख्म हो गया कुछ भाई तो ऐसे थे कि उनकी गांड फाट गई है ऊपर चलते चलते तो मेरे भाई आखिर में मैं यही कहता हूँ डंकी लगाओ डंकी जरूर लाइयो यूरोप च बड़ा मजा जी यकीन करो भाई डंकी लानी जरूर लानी चलो अगला हिस्सा ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਰਕੀ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ डोंट वरी अल्लाह हाफिज जी नाज़रीन तो ये वीडियो आपने भी देख ली है ये वीडियो तब बनाई थी तो मुझे इतना जो है ना वो पता नहीं था कि ये वीडियो इतनी वायरल होगी और इसको काफी फेसबुक पेजेस पे लगाया गया और उसके बाद इसको काफी चैनल्स पे लगाया गया तो आज भी ये काफी लोगों के जो है ना वो यूट्यूब चैनल पे है अली विरक ने भी जो है ना वो भाई है यार अपने अफजाबाद के हैं वो भी तो जो उनके साथ सानिया हुआ था उसका भी मुझे अफसोस है अली ने भी अपने चैनल पे ये लगाई थी और तब मेरा चैनल उस वीडियो की वजह से जो है ना वो मैंने चैनल बनाया था और अपने दोस्तों के साथ जो है ना वो शेयर किया तो अली ने वो वीडियो लगाई हुई थी तो मैंने जनाब जब उसके कमेंट पढ़ता था ना तो इसमें मैंने गालियां निकाली हुई थी तो खैर अभी तो मैंने वो रिमूव कर दी है तो मैंने गालियां निकाली हुई थी तो ये इतनी गंदी गालियां लोग निकालते थे यार तू किड्डा तेरी जुबान किस तरह दी तू कहना हाफजा तू अपनी जुबान वे तू गाला कहीं कढ़ना तेन शर्म नहीं तू की है तू चंगा ये वो जनाब बड़ी तो मैंने उसको ना काफी कमेंट किए मैंने कहा यार तेरी मेहरबानी है वीडियो डिलीट कर या एडिट कर जो रिमूव कर तो लेकिन अली विरक ने वो ऐसा कुछ भी नहीं किया था तो मैंने बहुत ज्यादा कमेंट उसको किए फिर जाके जनाब मुझे उनको स्ट्राइक मारना पड़ी और उसके लिए बहुत माजरत अली भाई आपको स्ट्राइक मेरी तरफ से पड़ी तो जब उनके कानों पे पड़ी तो फिर उन्होंने मुझे ईमेल किया कि यार भाई प्लीज तुम मैंने दसो तो सही तुहानू की मसला सी आपने क्या क्यों किया ऐसा यार आप स्ट्राइक वापस ले लें तो मैंने फिर उनको रिस्पॉन्स नहीं दिया जिस तरह उन्होंने मुझे नहीं दिया था तो फिर बाद में मुझे पता चला जब उन्होंने मुझे कॉलें वगैरह की मेरा नंबर तब यूट्यूब पे आम था उन्होंने मुझे कॉलें वगैरह की और कहा कि जनाब इस तरह जो है ना वो फलां डील कर लें ये कर लें मैंने कहा ना हुण वर्के पाड़ दिओ तेनों मैं प्यार नाल कहंदा रहा सी ते हुण जदों ठुकी है ना कन्ना विच तो बहरहाल माजरत यार बहुत अफसोस मुझे दुख हुआ था मुझे नहीं पता था तभी जब मेरा चैनल बन गया ना तो जब क्लेम भी आता है ना कोई कॉपीराइट का तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि यार ये क्या हो गया तो एक दफा फिर अली भाई आई एम वेरी सॉरी तब आपको हर्ट किया लेकिन अभी जो है ना तब मुझे नहीं पता था कि आप भी हाफिजाबाद के हैं क्योंकि आपने बताया नहीं था तो फिर जब उसके बाद थोड़ी सी एक दो दोस्तों ने आपके गांव का जारियांवाला का एक लड़का था वो इधर हमारे कैंप में आया था उदीने में इटली में तो उसने बताया कि यार ये लड़का आकिब इसका नाम है
फिर उसने मुझे सारा आपकी हिस्ट्री बताई थी कि ये कौन है, किधर क्या क्या करता है, बस ये कैसे जो भी निज़ाम थे। तो जरियांवाला का भाई था, उसका और मेरा टकरा हुआ था, तो तब मुझे पता चला कि अब आप बात है। तो चले जी नाजरीन, आपने वीडियो देखी और ये वीडियो बहुत वायरल हुई। इस वीडियो की वजह से मेरा चैनल भी बना। अगर मैंने चैनल बनाया तो इस वीडियो ने मेरा चैनल बनवाया। जिसने भी देखता था वो कहता था यार आपके इतने व्यूज हैं तो आपका चैनल जो है ना आप बनाए, आप इस पे वीडियो अपलोड किया करें, आप बहुत आगे जाएंगे, आपको तरक्की मिलेगी, आपका माशाल्लाह अंदाज बड़ा अच्छा है, लोग बहुत पसंद करते हैं। फिर वो वाली वीडियो अपलोड करने के बाद फिर मैंने वीडियो जो है ना वो अपलोड की थी जब मैं यूनान से निकला था डैंकी के लिए। वो वाली वीडियो जब मैंने अपलोड की तो उसको इतने व्यूज मिले, इतनी फॉलोइंग, वो लाइव डैंकी की मैंने वीडियो बना के लगाई थी और वो 14 मिनट की वीडियो थी। वो भी आपको इंशाल्लाह आगे जाके दिखाऊंगा, उसका लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग देख सकते हैं वो वाली वीडियो भी। तो जहां से मैंने यूनान सलोनिक स्टेशन से निकला और बोस्निया तक पहुंचा था, सर्बिया कैंप तक की वो बनाई हुई थी। वो वाली वीडियो जब वायरल हुई काफी, तो उस पर साथ मेरे सब्सक्राइबर भी माशाल्लाह रोज का 1000 सब्सक्राइबर बढ़ना शुरू हो गया और बहुत कमाल का था। तो बस ठीक है, वो इंशाल्लाह साथ साथ डिस्क्राइब करेंगे आपके साथ। तो चले जी, अभी ये वाली वीडियो जब हमने बनाई ना तो देखा कि गाड़ियां हमारी तरफ जो वो आने वाली थी, वो गाड़ियां आ रही और उन गाड़ियों में जनाब वो क्या था कि उनके अपने कुछ और बंदे थे। वो पठान कुछ लेके आया और आते हुए उनको उतारा और कहता है यहाँ पे छुप जाओ, बस वहां पे वो आर्मी है। तो वो दूरबीन के साथ देख रही है। हम वहां पे देखा आपने किस तरह ये वो सारा खजूर वाला इलाका था। तो मेरे पास मोबाइल था, मैंने उसको कहा कि एक सिम कार्ड चाहिए, सिम। उसने कहा 1000 रुपया पाकिस्तानी जो है ना उसकी सिम मिलेगी। हमने जनाब वहां पे उसको मैंने कहा तो यार 1500 लाया, तेरी मेहरबानी, मेरा राबता करके तरीके करा, मैं अपने एजेंट दी भैन दी मां दी धी दी एक कर दिया, जरा मैं ये कर देंगा वो कर देंगा। इसने हमें कहा था कि आपको बस आपको गाड़ी बाई सीट बिठा के लेके जाएंगे ईरान में, आपको जिधर दिल करे आपको, लेकिन ये तो उसने बताया ही नहीं था। मैंने जनाब उस पे वो सिम लिया और उस पर मैंने 50,000 तुमन का इजी लोड करवाया। सिम अभी वो एक्टिव हो गई। तो मैंने उस पे मेरे मोबाइल की बैटरी जो थी ना वो इतनी खास नहीं थी, तो मैंने ना वो दूसरे मोबाइल में लड़के के डाला तो उससे सिम भी सिग्नल नहीं आ रहा था। तो मैं पहाड़ी के ऊपर थोड़ा सा चढ़ गया, वहां पे सिग्नल आया, मैंने भाई को मिस कॉल दी, भाई ने जनाब फौरन मुझे जो है ना वो पाकिस्तान से बैक कॉल की। उसने कहा कि ईरान का नंबर, उन्होंने कॉल की, कहते हैं मैं क्या आंदी जेंट दी भैन दी मां दी मैं चंगियां गालां कड्डियां जनाब। मैं क्या उन्होंने कहा सानू मार दिता, असो किथे आ वेख साडे, मैं वीडियो बनाई मैं तुहानू सेंड नहीं कर सकदा, नेट नहीं मेरे कोल, ਅਸੀਂ मर गए हाँ सारी रात दे, मेरी लत्तां दे पट्टे छिक गए, मैं मर गया, मैं नहीं जगह जाना, मैनू वापस लैके जाओ, अम्मा नू ना दसी, मैं भा मैं नहीं इत्थों अगां जाना, मैं मर जानी इत्थे पहाड़ां दे विच। मुझे कहता पुत्तर मेरी गल ते दस, असां तैनू धक्के नाल घरों कड्ढिया सी, तैनू आप नू जिहड़ा सी ना वो समझ ते गया ही होवे तू निकल के असां तैनू की किहा सी, हुण मर साडे हुण हौसला कर, इंजी समझ मैं ट्रिप ते गया है ते इंजॉय कर, तेन भी बड़ी शौक सी, रोज आंदा है मरी जाना है उधर पहाड़ इंजॉय कर। क्योंकि इससे पहले जो मेरे भाई थे ना वो टैंकी लगा के गए हुए थे 2005 में, तो उनको ये सारे सफर का पता था, लेकिन उसने मुझे कहा था कि यार सफर बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर पहुंच जाओगे ना तो अल्लाह खैर करेगा, मुश्किल नहीं, इंटरटेन करना है, इससे बोर नहीं होना या आवाजार नहीं होना। फिर उसने मुझे हौसला दिया, तो मैं फिर जो है ना वो वहां पे संभला और वहां से जनाब अभी वो आया खाना लेके, उसने एक वो बड़ी बड़ी रोटी थी, वो रोटियां लेके आया और रोटी लाने के बाद उसने जनाब हमें दही साथ में दी और अचार हमारे पास पहले ही था। तो वो अचार के साथ हमने रोटी के सारा दिन वहां पे हम बैठे रहे और वहां पे बैठने के बाद जब शाम हुई उसने कहा कि आपको अभी यहाँ से ना हमने एक सेफ में लेके जाना है, तो उससे आगे फिर आपको लेके जाएंगे। अभी ये जो है ये हम खास शहर में बैठे हुए थे, खास के साथ को गाँव बस्ती थी मोटरवे के पास ही, वहां से भी उसने हमें फिर उठाया और डाले आ गए। शाम को जनाब डाले आए और उसने खबर दी है कि जो लोग पहले हमसे गए हुए थे उन सबको आर्मी ने पकड़ लिया है जी। 300 बंदा वहां से हम इकट्ठे बॉर्डर जब क्रॉस किया था वो सारे पकड़े गए, सिर्फ 19 लोग हमारे डाले वाले और 23 एक दूसरा डाला था, वो वाले लोग जो एक हमारे साथ खजूरों वाला बाग था उधर बैठे हुए थे और इस खजूरों वाले बाग में सिर्फ ये हम लोग बच गए थे, बाकी सबको पुलिस और फौज ने पकड़ लिया। और फिर उसने कहा कि अभी आपने बस टाइट हो जाना है इस्तकामत पे, तो आपने बैठ रहना, टेंशन नहीं लेनी, अभी मैं जानू मेरा काम जाने, मैं आपको बस लेके जाऊंगा एक जगह पे। वहां से अभी जनाब उसने हमें निकाला जो ही ना, तो अचानक मेन रोड पे उसने गाड़ी चढ़ा दी। मेन रोड पे उसने गाड़ी चढ़ा के इतनी भगाई कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। गाड़ियों उसके अंदर से वो ऐसे गाड़ियां निकाल के लेके जा रहा था ना
कि शो शो ऐसे जनाब। तो हमने कहा ये पागल हो गया। अभी वो गाड़ियों वाले देख रहे हैं मोटरवे के ऊपर, उसने जनाब ऊपर बंदे बैठाए हुए हैं, तो वो जा ही रहा। तो हमने कहा बस आज पक्के मरेंगे। तो खैर जी 3-4 घंटे डाला चलने के बाद जो है ना, आज आके हमें उन्होंने वहां पर, तब मुहर्रम थे, उसने हमें लेके जाना था बम चौकी वाली तरफ ना। एक बम शहर है, और बम चौकी को बम क्यों कहते हैं जी, ये भी बात सुन ले। बम चौकी को बम इसलिए कहते हैं कि वहां पे वो ईरान के शहर हैं, जिस तरह ईरान शहर हो गया या तबरेज हो गया, उसके अलावा जनाब कुम शरीफ हो गया, उसके बाद मशहद हो गया, तेहरान हो गया, बजरगान हो गया, माको हो गया, ये सारे जो है ना ये ईरान के शहर हैं। और इसी तरह जो ईरान का एक शहर है बम, तो जो उसकी चेक पोस्ट आती है, जो चौकी आती है, उसका नाम था बम चौकी। और कुछ लोग ये कहते हैं कि वहां पे वो बम लगे हुए हैं इसलिए उसको बम चौकी कहते हैं, ऐसा नहीं होता। और वो सख्त क्यों है, इतनी सख्त बम चौकी इसलिए है मेरे भाई कि जो बम चौकी है ना, उस बम चौकी पे जितनी भी गाड़ियां हैं उनकी इंस्पेक्शन होती है कि उसके वो जहां से गुजरती है ना गाड़ियां, उसके नीचे भी कैमरे लगे हुए हैं गाड़ी को नीचे से देखने के लिए, साइडों पे भी लगे हुए हैं, ऊपर भी लगे हुए हैं। और उसके ऊपर मतलब ऐसे ही समझो कि गाड़ी स्कैन होके जाती है वहां से। तो एक बम चौकी क्या है कि उधर गाड़ी खड़ी हो गई है आपकी, सारी सवारियों को उन्होंने उतार लेना है, उनके बैग वगैरह सब कुछ गाड़ियों में से, तो एक साथ कमरा बना हुआ है, तो उधर से उन्होंने उसके पासपोर्ट चेक करके तो आगे जाने देना है बम चौकी वालों ने। मतलब इतनी सख्त चौकी है वो, इधर से वो उतारते हैं। तो हमने सुना हुआ था कि बम चौकी बहुत मुश्किल है, तो देखें वो कैसे पार करते हैं। तो अभी उसने क्या किया कि बम चौकी की तरफ लेके जाना था, तो उन्होंने हमें उस शख्स के घर में उतार दी। एक ना एक गांव था उसमें ले गया और उसने कहा कि ये जल्दी से दीवारें चढ़ के अंदर छलांगे लगा दो। तो हम तकरीबन जनाब 15-16 लोग थे अपने डाले वाले, हमने उस घर में छलांगे लगा दी। तो अभी मैं आपको ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उस घर की तस्वीरें थी। यहाँ पे आके हमने जनाब नहाए तो फ्रेश हुए। तो बाकी यहाँ से जो आगे की स्टोरी है इंशाल्लाह फिर हम वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। तो आपने इसी तरह जनाब हमारी वीडियो को देखते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।